Greeting traders, I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and welcome to this video. In this video, we'll be discussing what happened in the market previous week and what we can expect from the market in the series of November. So personally, I'm bearish for the series of November, and the reason behind me being bearish in the market is different, is quite different. My bearishness is based upon astrological aspect and Gann aspect of the market, and I'll not be able to explain it to you. I'll just put it that way. See, for making a sentence, like we make a full-fledged sentence, and for making a sentence, we first learn about alphabets A, B, C, D, capitals, small letters. Then we learn about how to create a word. Then we learn about how to combine words, and at the end, we come at the point where we start making sentences. So it's just like this. I have made a sentence. All right. And now I'll not be able to tell you how I made that sentence. First of all, I need to teach you about alphabets. So that's why I'll not be able to explain my analysis to you, that astrological aspect, that Gyan aspect, because I don't know whether you guys are aware about alphabets or not. So that's why I'll not be able to explain it to you. But yeah, let's talk about the technical aspect of the market. So I don't think so technicals have changed since my last video. Quite corrections were required in levels, so I've already done that, and I'm just showing you my screen. So these are the technical levels as per me, that these levels will be beneficial for you in the coming market sessions. So this is the all-time high of the bank nifty, plus this is the hourly time frame resistance, this is the intraday resistance, and all these are the levels that will be uh, very much important for the market in the coming sessions. So let's just start with the concept. See, I was receiving a lot of requests. I was receiving a lot of messages actually on my Instagram, on my WhatsApp. Sir, we haven't entered shorts yet. What's the right time to enter in the shorts? I'll suggest you, see, I'm currently in Nifty shorts, but I'll suggest you to enter in Bank Nifty shorts. Reason being, Bank Nifty is weaker than Nifty as of now. And my view is in line with Bank Nifty. Bank Nifty is uh, reacting exactly as per my analysis, is moving exactly as per my analysis. I'm stuck in Nifty. I'm looking forward to shift my position to Bank Nifty. It's a huge position, so it will not be easy for me to close my position in Nifty at this particular point of time, but yeah, I'm looking forward to switch my position to Bank Nifty. So those who haven't entered shorts yet are requested, I request you all to please make your shorts in Bank Nifty. You'll love it. You'll love the rally on the downside in Bank Nifty. So when is the right time to enter in the short? See, you can see over here, these are the resistance levels. This again is a resistance level. And over here, like, I would suggest you to just put up a Fibonacci retracement over here and just wait for the 50% of retracement or 60% of retracement. And when it's done, you can end in the short side of the trade. So ये एक आपका एनालिसिस रहेगा कि आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करो, और वो बहुत सिंपल रहने वाला है, वो आप कहीं पे भी देख के शॉर्ट कर सकते हैं. देयर इज नो रॉकेट साइंस ओवर हियर. सो बैंक निफ्टी में अपने आप शॉर्ट्स एक्टिवेट कीजिए, ठीक है. और शॉर्ट्स जैसे ही आपके एक्टिवेट होते हैं, सो पर्सनली लाइक व्हाट आर माय टारगेट्स, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग. सो सी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका ये जो लेवल है ना 4200 का, ये आपका बहुत आसानी से आने वाला है, बहुत आसानी से, ठीक है. It's like approximately from this to this. So you can see approximately I'm expecting a fall of 800 points in Bank Nifty. So that will automatically result approximately 300 to 350 points in Nifty. So these are the technicals for Nifty. So you can keep, you can mark these levels on your chart and keep these levels in your mind for the coming trading sessions. सो उतना जितना ही फॉल मैं वहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके ही प्रोपोर्शनेट फॉल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी आ सकता है. So currently Nifty is holding this trend line and Nifty is holding this level as well. So we need Nifty to break this trend line on intraday front, so that we will get a sort of, conviction, sort of a confidence in our trade, that yes, now Nifty is weak and we can expect lower levels quickly. सो ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करते हुए चलो. टेक्निकल्स लेवल्स आपके सामने, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों लेवल्स आपने मार्क कर रखे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर.
बस वेट फॉर द राइट टाइम। पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आपको एकदम से नहीं दिखाने वाला फॉल, थोड़ा सा टाइम लेगा। और कुछ डाउट्स जो आ रहे थे कि सर 17,900 चला जाएगा मार्केट, 18,000 चला जाएगा, आई डोंट थिंक सो। जा भी सकता है तो चलो ठीक है, आई लेवरेज माई पोजिशन, दिस नो हार्म। But the thing is, I think जो मेरा last video डला था, you guys must have remembered that thing. Market closed over here and SGX Nifty was showing opening of somewhere over here. ठीक है, 17,975 का ओपनिंग शो कर रहा था, एंड वेयर इट ओपनड 17,775, 200 पॉइंट अपने आप नीचे आ गया था, 17,800 भी नहीं ब्रेक कर पाया ओपनिंग में। सो इट्स लाइक आपका ये एस जी एक्स तो आपका दिमाग ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एस जी एक्स कल भी बहुत ऊपर के लेवल शो कर रहा था, और अगेन आज वही ओपन हुआ फ्राइडे को। अब फिर से अगर मैं अभी चेक करूँगा, फ्राइडे है अभी, अभी क्लोज नहीं हुआ, देखो 18,000 की ओपनिंग ही शो कर रहा है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये उतना ओपन होगा इतने हायर लेवल्स पे। अगर हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वेल पोजिशन इन माई ट्रेड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चीज़ से, राइट। प्लस हाँ, कुछ मैं चीज़ें एनालाइज कर रहा था, अदर देन दिस आई वाज एनालाइजिंग फ्यू थिंग्स एज वेल। हमारा ये जो क्या कहते हैं, नैस्डैक के फ्यूचर्स, कल ये जितना नीचे गए थे, अगेन इन्होंने रिकवरी दे दी है। रीज़न बीइंग कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट का अच्छा खासा लेवल था, और इसने वहाँ से सपोर्ट ले ली। लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो मेरे शॉर्ट्स इसके अंदर यहाँ कहीं एक्टिवेट हुए थे, मतलब जो मेरा सिस्टम पे शॉर्ट एक्टिवेट हुआ था उस टाइम पे नैस्डैक यहाँ कहीं था। और नैस्डैक का अगर आप देखोगे, नैस्डैक ने तो टोटली टारगेट्स अपने दे ही दिए। सी ओवर हियर, नैस्डैक हैज गिवन मी द टारगेट, नैस्डैक ने दे दिए टारगेट। सो नैस्डैक तो, अगर मैंने नैस्डैक में ट्रेड किया होता मैं तो अब तक प्रॉफिट लेके बाहर आ चुका होता। ठीक है, वो वाला सीन है यहाँ पे। सो नैस्डैक ने तो मेरे को टारगेट्स दे दिए हैं, बट अभी इंडियन मार्केट का आई डोंट थिंक सो कि इतना स्विफ्टली मेरे को टारगेट मिल पाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। कुछ चीज़ें शायद मेरे को चेंज करनी पड़ेंगी अब, बिकॉज़ जो जैसा मूव मैं अब देख रहा हूँ यूएस मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मेरे को बस लग रहा है कि इतना जल्दी यहाँ पे रिकवरी आ गया। डो जोन्स तो कुछ खास, डो जोन्स के अंदर तो फॉल आया ही नहीं, कोई खास फॉल आया ही नहीं डो जोन्स के अंदर। ये तो ऊपर 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 जाता जा रहा है। एस एन पी 500 एक मेरा था, अब एस एन पी 500 ने भी मतलब पहुँच गया अब तो रेजिस्टेंस के पास में अपने। आई शो यू, ये जो एस एन पी 500 का रेजिस्टेंस है, एस एन पी 500 पहुँच गया अपने रेजिस्टेंस पे। सो इट्स लाइक दिस कि ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इसको यहाँ पे अगर ये रुक गया थोड़ा सा भी, तो मेरा जो ट्रेड है निफ्टी बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स का जो मैंने प्लान किया हुआ है उसके अंदर मेरे को बढ़िया प्रॉफिट्स आने चालू हो जाएंगे। बिकॉज अगर बात की जाए डो जोन्स की, ये तो नहीं रुकने का नाम ले रहा है, ये तो भागता ही जा रहा है। सो लास्ट होप फॉर मी इज एस एन पी 500। नैस्डैक तो बढ़िया चल रहा है, नैस्डैक ने तो टारगेट ही दे दिया मेरे को, तो नैस्डैक से तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, नैस्डैक की तो बात ही आप छोड़ दो। सो द थिंग इज ओवर हियर, डो काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई इतना, मतलब लाइक ये एक ऐसा कंसेप्ट हो गया है फिलहाल यहाँ पे कि ना, डाउ थ्योरी का कंसेप्ट है कि एवरेजेस एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, और ये यहाँ पे कर ही नहीं रहा। कहाँ एस एन पी 500, कहाँ डो जोन्स, ये एक दूसरे को कंफर्म ही नहीं कर रहे इस टाइम पे। सो इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ डाइवर्जेंस ओवर हियर, इंडेक्स का डाइवर्जेंस आ गया है यहाँ पे। सो वो वाली चीज़ है, इंडेक्स का डाइवर्जेंस है। सो जैसे ही ये इंडेक्स का डाइवर्जेंस आपका ख़त्म होता है, आपको दिख जाएगा नीचे के लेवल्स आते हुए दिख जाएंगे आपको डो जोन्स के अंदर भी। ठीक है। सो टेक्निकल्स जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं इन पे आप ध्यान दीजिए, इनको आप फोकस करिए। ठीक है, इंट्राडे के मैंने आपको बढ़िया लेवल्स निकाल के दे दिए हैं, ध्यान में रखिए आप इन लेवल्स को। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। जिनके शॉर्ट्स एक्टिवेट नहीं हुए बैंक निफ्टी में अपने शॉर्ट्स एक्टिवेट करिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ प्लान क्या रहेगा। बैंक निफ्टी में आपके जो शॉर्ट्स एक्टिवेट होंगे वो नवंबर एंड के होंगे, जो 24 नवंबर की आपकी एक्सपायरी है ना, मंथ एंड की, वहाँ पे आपके शॉर्ट्स आपके ट्रिगर होंगे, आपने वहाँ के पुट्स बाय करने हैं। ठीक है। और बीच में ना मार्केट के अंदर ना आपको बुलिशनेस आती हुई दिखेगी। तो वो जो आपको बुलिशनेस आती हुई दिख रही है, अब उससे होगा क्या। सपोज आपने पुट्स के अंदर एंट्री ली है, ठीक है, और एंट्री लेने के बाद मार्केट आपका थोड़ा सा बुलिश होता है, आपके पुट्स के अंदर लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, बट उतना नहीं होगा क्योंकि आप मंथ एंड एक्सपायरी के अंदर हो, तो उतना ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, बहुत मिनिमम सा लॉस हो रहा होगा। ठीक है, मैनेजेबल होगा, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होगा, रीजनेबल एकदम। सो पुट्स के अंदर ना आपका लॉस चल रहा होगा जब आपका मार्केट थोड़ा सा बुलिश होगा। तो वो जो बुलिश मूव आएगा ना मार्केट के अंदर, वो आप वीकली कॉल से आप अपने मंथली पुट को हेज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट।
लेट्स से कि आपने पुट के अंदर एंट्री ली, 2 दिन 3 दिन मार्केट आपके फेवर में चलता है, चौथे दिन आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप कॉल को ट्रेड करेंगे, आप अपने हेज करेंगे पुट को कॉल से, और वो आपका वीकली कॉल होगा, मंथली नहीं वीकली, आप वीकली से उसको हेज करेंगे। सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, इन डेप्थ आप इसके बारे में पढ़िएगा, आपको पता लगेगा। मैं कैलेंडर स्प्रेड्स पर्सनली बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं तो खैर काफ़ी स्प्रेड्स करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या किया है, फॉर लास्ट आई वुड से 3 मंथ्स, 3 4 मंथ्स में ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया हूँ, ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। सो ऑप्शन सेलिंग में तो आपके बहुत सारे स्प्रेड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, एंड आई एम मेकिंग गुड मनी इन ऑप्शन सेलिंग टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन बाइंग भी कर रहा हूँ, जब जहाँ पे मेरे को मौका मिल रहा है ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं नहीं कर रहा, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मेरे को ऑप्शन बाइंग के अंदर भी। सो द थिंग ओवर हियर इज दिस दैट स्प्रेड्स जो होते हैं ना आपके, वो आपके ऑप्शन सेलिंग में बढ़िया चलते हैं, बट सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड ही एक ऐसा स्प्रेड है जो आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई, एंड आई नो माई कम्युनिटी, माई ऑडियंस इज मोर ऑफ अ ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर देन एन ऑप्शन सेलर। सो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक इस हिसाब का ट्रेड निकाल के दिया है जो कि आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। लेट्स से हैव अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख, आपका ये जो मंथली पुट आएगा 20-25 हज़ार का आएगा, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 75,000 रुपीज़। सो अब आप ये 75,000 को यूज़ करेंगे वीकली कॉल्स के अंदर अपने मंथली पुट को हेज करने के लिए, राइट। सो एट द एंड क्या होगा, अगर आपके जो पुट का व्यू है, अगर ये आपका मार्केट अगर आपके पुट के व्यू को डिफीट भी कर देता है ना, आपका फिर भी लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वीकली कॉल्स के अंदर इतना खेल चुके होगे कि आपका ऑलरेडी ओवरऑल ना प्रॉफिट के अंदर चल रहे होगे आप। सो स्प्रेड्स का ना ये बेनिफिट होता है, स्प्रेड्स आपको बहुत मिनिमम लॉस कराते हैं अगर आपको प्रॉपरली मैनेज करना आता है तो। ठीक है, फायर फाइटिंग बोलते हैं इसको टेक्निकली, बट इट्स लाइक कि आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट। सो ये आपका प्लान रहेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द बैंक निफ्टी शॉर्ट्स। कैलेंडर स्प्रेड्स में आप खेलेंगे, मंथली पुट होल्ड कीजिए, वीकली कॉल के साथ आप उसको हैच करते रहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सही टाइम आने पे आप अपने मंथली पुट को भी एवरेज कर सकते हैं। जो आपने कॉल को हैच कर करके जो आपने पैसा बनाया होगा, आप उसी पैसे को यूज़ करके अपने मंथली पुट को एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करेंगे, सस्ती कॉस्ट बैठ जाएगी, फिर जैसे ही आपके व्यू के साथ मार्केट नीचे आना चालू होगा, आपके पुट के अंदर भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली आपने कॉल के अंदर पैसा बनाया होगा, ठीक है, एंड एट द एंड आप अपने पुट के अंदर भी पैसा बना लोगे। सो नवंबर का मंथ आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। जस्ट स्टे विद मी। ठीक है, अगर मेरे को कोई बीच में करनी हुई मॉडिफिकेशन की, अगर मेरा प्लान चेंज होता है कि मैं बेरिश से बुलिश होता हूँ या बेरिश से साइडवेज होता हूँ, सो वो मैं आपको बता दूंगा, बट फॉर नाउ आई एम बेरिश फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि मैं एकदम रिजिड हो चुका हूँ, नहीं, अगर मेरे को मार्केट ने दूसरे कुछ शो करा तो मैं अपना एनालिसिस टोटली चेंज करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बिकॉज मार्केट्स आर सुप्रीम। आई एम नो वन इन फ्रंट ऑफ अ मार्केट, मैं कुछ भी नहीं हूँ मार्केट के लिए, लाइक सीरियसली बहुत मामूली से कैपिटल लेके आया हूँ मार्केट के सामने, तो मार्केट खुद $1 बिलियन फर्म है। सो मार्केट मेरे को जैसा बोलेगा मैं उसी हिसाब से चलूंगा, बस अपना मैंने एक व्यू बनाया हुआ है, अगर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया तो मेरा अच्छे टारगेट्स, मेरे अच्छे प्रॉफिट्स वहाँ से मैं निकाल सकूँगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपको पूरे टेक्निकल लेवल्स बता दिया, आपको पूरा प्लान बता दिया। अगर आपको कोई डाउट है, यू हैव माई इंस्टाग्राम, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर मेरे को करनी हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आके भी बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू टू योर ट्रेडिंग। विल सी यू गाइज इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।